Welcome to the world of the International Fab Talks. Thank you for being a part of our journey, dear friends. We are back again with a beautiful celebrity who has a beautiful mind of helping people in her own way. Guess who she is? She is none other than Soumitra Karmakar Chakrabarti. She is a young lawyer. She is joining us all the way from Kolkata, West Bengal, India. Let's welcome our guest. Join us. Hello, ma'am, and welcome to the session. Hello, thank you. Yes, dear. Thank you so much, ma'am. My dear friends, I want you to know who is she actually. She is a criminal lawyer from, and she is connected with the Alipur Police Court panel lawyer as well, Nishita NGO, and she's also connected with many other social work groups. And of course, with ma'am's permission, I shall go ahead and share her profile. Ma'am, आपका profile सभी के साथ अभी share करेंगे in an official way. Okay. Thank you, ma'am. Friends, as I earlier mentioned, she is a criminal lawyer. Soumitra Karmakar Chakrabarti, working very hard for justice for people who really need it and for the people who really don't know how to stand up for themselves. So she's connected with different organizations and enabling people to get justice. Actually, she was born in a family that was an underprivileged family with enormous financial pressure, but she managed to emerge victorious in all aspects and finally win over her education, and she's been able to help many people. She has high standards of honesty and dedication, and she always focuses on the work that is given to her. She has a proven record of running her organization or projects in a very well established and dignified manner by connecting with large number of people. Being a lawyer, she has to have that connect with everyone. She has created immense impact by the way of activism for various marginalized and oppressed communities. She has also spent more than a decade actively working with Dalits, that is working for Dalit rights movement, which was involved with public hearing, fact findings, legal support, demonstrations, etc. She has completed a BA and LLB from the University of Calcutta with first class marks. And she's also focusing on wanting others to develop in this field. She doesn't want to work alone. She wants other young girls to stand up and become lawyers. She wants the younger generation to work for justice, to bring peace into this world, and to overcome all types of abuse. She's really working on these beautiful areas, the rights for women, rights of people with disabilities, focusing on the rights of senior citizens, working with Matua Maha Sangha, a group dealing with the rights and developments of Dalit persons. She's also focused on child rights, refugee rights, prisoners' rights, and Dalit rights as well. So let's get to know more about her and her work, how you could join her. चलिए हमारे साथ आप भी जुड़े रहिए और हम अपने गेस्ट की जिंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में जानेंगे. Hello, ma'am, Soumitra ma'am. Thank you for joining and धन्यवाद for joining the International Fab Talks. Yes. Thank you for inviting me. Thank you, dear. मैम, आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? आप असल में कौन है? आप तो इतने यंग हो, फिर भी इस मुश्किल सा फील्ड में आ चुके हैं. एक लॉयर बनने का आसान तरीका तो नहीं है वो जिंदगी का. बहुत मुश्किलों के साथ आप यहाँ तक आए हैं और लड़ रहे हैं समाज के लिए. तो यहाँ तक आने के लिए आप कितना कष्ट उठाकर यहाँ तक आए हैं? एक्चुअली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. मेरा जो पिताजी है वो एक टीवी मैकेनिक है और पहले से ही मतलब मैं और मेरा भाई दोनों भाई बहन थी और हम दोनों बहुत ही मतलब कोशिश करते थे कि बड़े होके कुछ बनना है. तो इसलिए हम लोग का टारगेट था कि एजुकेशन ठीक से करना होगा. तो पापा ने बहुत ये स्ट्रगल करके हम लोग को पढ़ाया है और मैं उसके बाद फिर एचएस के बाद मेरा एक फ्रेंड मुझे बोला कि लॉ का एंट्रेंस हो रहा है, तुम एग्ज़ाम दोगी? तो एक्चुअली मैं उस टाइम मेरा कुछ ऐसा पता नहीं था कि कैसे लॉ का एंट्रेंस देता है और मतलब एलएलबी के लिए एंट्रेंस होता है या नहीं है.
तो मेरा जस्ट एचएस खत्म हुआ, उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे पता चला कि एलएलबी का फॉर्म निकल गया एंट्रेंस का, तो एंट्रेंस देना है। तो मेरा दोस्त बोला कि एक काम करो, मैं भी दूँगी तुम्हारे साथ, तो मैं भी एक फॉर्म लेके आती हूँ। तो वो खुद जाके इंटरनेट से डाउनलोड करके मेरे लिए फॉर्म दे के गया और मैं मेरा तो वो लास्ट मतलब उसके बाद 3 और 4 दिन था मेरा फॉर्म जमा करने का और वो 3-4 दिन मेरा ये सोचने में ही चला गया कि मैं जाके एंट्रेंस में क्या करूँगी? मतलब कैसे एंट्रेंस दूँगी, कैसे होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत मतलब ये परेशानी आ गया था। तो उसमें हमारे आस-पास में एक मतलब यंग लॉयर था जो एलएलबी पढ़ के बहुत वो भी एक मिडल क्लास फैमिली का ये था दीदी, उनके पास मैं गई जानने के लिए कि कैसे होता है ये एग्ज़ाम। तो जाने के बाद दीदी मुझे बोली कि अभी तो 10 दिन भी बाकी नहीं है एग्ज़ाम होने का, तो तुम अभी मुझसे जानने के लिए आए हो कि अभी कैसे होगा एग्ज़ाम? तुम एक काम करो इस साल छोड़ दो, तुम इस साल मत दो, तुम नेक्स्ट ईयर को कोशिश करो क्योंकि इस साल दोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा चांस। तो मुझे बहुत मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ उसके बाद वो सुन के, तो मैं घर लौट आई। तो उसके बाद मैंने बोला मम्मी को, पापा को कि मैं नहीं दूँगी एग्ज़ाम क्योंकि मुझे नहीं मिलेगा, ये बहुत टफ़ है, ऐसा आसान नहीं है कुछ और मैं तो सिर्फ़ अभी तक तो एचएस का मतलब मेरा आर्ट्स था, मतलब मैं आर्ट्स सब्जेक्ट लेके एचएस में पढ़ाई किए थे। तो मैं मम्मी को बोली कि देखो मेरा सब्जेक्ट में जो था बहुत और भी ज़्यादा पढ़ने का चाहिए था मतलब एलएलबी एंट्रेंस के लिए मेरा जो पढ़ाई था वो ठीक-ठाक नहीं है, अभी बहुत पढ़ना होगा। तो उस टाइम मैं मतलब क्लास 10 से 11 में जब गई थी, तो मेरा जो हस्बैंड है, उसके साथ मेरा एक रिलेशन स्टार्ट हुआ था। तो वो टाइम मुझे मेरा हस्बैंड मतलब उस टाइम में वो मेरा बॉयफ्रेंड था, तो वो मुझको बहुत सपोर्ट किया। तो उस उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है तुम दे के मतलब एक बार दे दे लो मतलब एग्ज़ाम में बैठ लो, हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो वही उसके बाद मेरा फॉर्म फिल अप करके दिया और मुझे साथ में जाके बहुत देर तक लाइन लगा के हम लोग फॉर्म जमा किया और एग्ज़ाम भी दिया। एग्ज़ाम के दिन जब मैं गई एग्ज़ाम हॉल में, देखी बहुत सारा स्टूडेंट्स लोग सब इतना सारा नोट्स लेके बैठ के पढ़ रही थी। तो मैं बोली कि मैं क्या करूँगी एग्ज़ाम दे के, मुझे तो कुछ भी नहीं आएगा, ये सब कितना पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा जो मतलब बॉयफ्रेंड ही मुझे लेके गए थे तब, तो वो बोली कि तुम कोई टेंशन मत लो, तुम जाओ जो होगा देखा जाएगा। तुम कोशिश करो एक बार। तो फिर जाके मैं एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम मतलब जो आया मुझे मतलब पता था मतलब मैं अपनी कोशिश से ही कर दिया एग्ज़ाम खत्म हो गया। उसके बाद जब रिज़ल्ट निकला तो मैं देखा कि मेरा एक रैंक जो था मेरा उस टाइम रैंक था 430 ठीक है, 430 रैंक था। तो उसके 1000 से ज़्यादा रैंक का बहुत लोग था, तो मेरा उसमें से 430 रैंक निकला। तो मैं फर्स्ट काउंसलिंग में गई और मतलब मेरा लक इतना खराब है, ऐसा हुआ कि काउंसलिंग में जाके 427 तक आके सब सीट फुल हो गया। मतलब जो हम मैं तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हूँ, तो 427 तक आके पूरा सीट फुल, अभी नहीं मिलेगा चांस। अभी मुझे भरना है, तो मुझे प्राइवेट कॉलेज में मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर जो सब कॉलेज प्राइवेट कॉलेज होता है सेल्फ फाइनेंस का, उस सब कॉलेज में मुझे पढ़ना होगा। तो ये सुन के तो मैं काउंसलिंग नहीं की क्योंकि उस टाइम हम लोग का इतना ये नहीं था कि मैं बहुत फीस दे के पढ़ाई करूँ। तो मैं उसके साथ रोते हुए कॉलेज से निकल गया कि चलो अभी नहीं होगा। तो उसके बाद मैं जब घर घर लौटी तो मुझे कुछ आस-पास का कुछ मतलब प्रोफ़ेसर्स लोग इन लोग के साथ बात हुआ, तो वो लोग बोला तो तुम थोड़ा देर वेट करो क्योंकि सेकंड काउंसलिंग फिर से होगा। अभी फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ऐसा होता है कि बहुत लोग एडमिशन नहीं लेता है और भी मतलब सीट्स होता है कि फुल मतलब बाकी रहता है। तो इसके लिए फिर से सेकंड काउंसलिंग होगा। तो मैं वही सोच के उस टाइम मेरा डिग्री कोर्स का दूसरा कोई भी कॉलेज से मैं फॉर्म नहीं उठाया। मैं लॉ ही पढ़ूँगी ये सोच के मैं
वेट किए कि ठीक है सेकंड काउंसलिंग होगा तो हम फिर से जाएँगे क्योंकि 427 तक हो गया फिलअप तो उसके बाद ही मेरा था मतलब 428-9 और मेरा था। तो इसलिए मैं सोचा कि हो जाएगा ठीक है वेट करते हैं। तो ऐसे करके 2 महीना निकल गया नहीं हुआ और वो 2 महीने में मेरा डिग्री कोर्स का मतलब मेरा जो और फ्रेंड था एचएस का सब लोग का दूसरा-दूसरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। किसी ऑनर्स लेके दूसरा सब फ्रेंड्स उसके मेरा उस टाइम मेरा जो सर्स टीचर्स लोग था, सब लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि तुम इतना अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो के तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसे 1 साल मतलब तुम्हारा नष्ट कर दे रहे हो, तुम लॉ के लिए वेट कर रहे हो, तुम छोड़ दो, नेक्स्ट साल देना फिर से अगर होगा तो, नहीं तो छोड़ दो दूसरा कोई कॉलेज में एडमिशन ले लो, सब कॉलेज का एडमिशन फुल हो रहा है। तो मैं फिर भी नहीं ये तो मैंने बोला नहीं मुझे लॉ ही पढ़ना है, मैं वेट करती हूँ, क्या होता है मैं देखती हूँ। तो उस टाइम मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरा जो हस्बैंड मतलब अभी जो हस्बैंड है वो, तो वो बोला कि ठीक है चलो हम देखते हैं फिर से कॉलेज जाके देखते हैं। तो हम जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज में पढ़ाई किए, तो उस कॉलेज में जाके वो खुद मुझे लेके गई थी और बोला कि सर से बात किया, प्रिंसिपल सर से बात किया कि सर उनका इसका ये रैंक है, तो आप लोग का तो फर्स्ट ये में काउंसलिंग में सीट फुल हो गया, सेकंड काउंसलिंग होगा या नहीं होगा अगर आप लोग बोलते, तो ऐसा-ऐसा बात है, तो हम लोग नहीं वेट करेंगे। तो उसको सर बोला कि आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, होगा सेकंड काउंसलिंग। तो फिर से हम लोग का एक मतलब ये हुआ कि अच्छा है काउंसलिंग होगा, तो फिर से हम लोग वेट किया, ऐसे करके 3 महीने हो जा रहा है। उस टाइम हम रोज़ मतलब पेपर में देखते थे। सर बोले थे उस टाइम कि पेपर फॉलो रखना, पेपर में अपडेट आएगा कि इस दिन सेकंड काउंसलिंग है। तो हम लोग पेपर मेरे घर में पेपर नहीं था तो हम पास में एक दादू था, उसको हम बोल के रखे थे कि दादाजी आप बोल देना मुझे, आप तो रोज़ पेपर पढ़ते हो। तो वो दादाजी पेपर देख के मुझे बोला कि ये देखो पेपर में आज निकला काउंसलिंग है। तो उसके 2-3 दिन बाद ही काउंसलिंग था। फिर जाके मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे लेके गई और मेरा मतलब लेके गया और उस दिन मेरा फर्स्ट में ही हो गया। फर्स्ट में ही उसमें उस दिन बहुत सारा कॉलेज में ही मतलब सरकारी जो कॉलेज है सब में जगह था और उसको पूछा गया वो बोला कि तुम जाओ अभी हो जाएगा। तो मतलब ये रखो, हौसला रखो कोई बात नहीं। तो हम गए तो मुझे पूछा गया कि देखो ये कॉलेज है, ये सब में सीट खाली है, तुम्हें कौन-सा चाहिए? तो मैंने जो चूज़ किया वही कॉलेज में मुझे चांस मिला। ऐसे करके हम कॉलेज में गए और हम जब कॉलेज में फर्स्ट दिन गए उसके बाद हम जाके मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई मतलब ये रिवर से उठा के सी में फेंक दिया। मतलब 3 महीना का बहुत सारा कोर्स हो चुका था, बहुत सारा नोट्स मतलब उन लोग को हो गया था, सिलेबस कंप्लीट हो गया था क्योंकि हम लोग का 6 महीने में फर्स्ट सेमेस्टर होता था। तो ऑलरेडी 3 महीना हम निकल गए थे सेमेस्टर के पहले मतलब हम मुझे नहीं ये मिला। तो फिर से और एक बात था कि मैं बंगाली मीडियम का स्टूडेंट थी, तो उधर जाके इंग्लिश में इतना सारा बात जब लोग बोल रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई समुंदर में फेंक के चला गया। मुझे कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहा है प्रोफ़ेसर्स लोग। मैं मतलब 1-2 दिन और उससे ज़्यादा मतलब 10-15 दिन तो मेरा ये सोचने में ही पता चला गया कि मैं कैसे कर पाऊँगी, मैं 5 साल इधर बिता पाऊँगी या छोड़ देना होगा मुझे मिडिल में। तो ऐसे करके मेरा मतलब कॉलेज जाते-जाते हैबिट हो गया और मैं 5 साल बीत गया और लॉ पास भी कर गया और हर जो सेमेस्टर है वो सब में ही मुझे फर्स्ट क्लास मिला। ये मतलब ये ईश्वर का कोई ये है कि मुझे हो गया है ऐसा। तो उसके बाद जाके हम मतलब पढ़ाई एलएलबी कंप्लीट करके हम ये प्रैक्टिस चालू किया कोर्ट में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं सुन रही थी कि भी है क्या, अभी क्या होने वाला, अभी क्या होने वाला, आप लिखोगे या नहीं? तो इतने मुश्किलों के साथ आप यहाँ तक आ गए, आप पार करके आ चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और शेयर भी करें सबके साथ कि दूसरे लोग भी सीखना है कि भाई हिम्मत नहीं हारना है, अच्छे वक्त भी आएंगे, है ना? हाँ, मेरा तो दूसरा एक भी और एक प्रॉब्लम हो गया था मिडिल में एक्चुअली मेरा ना पहले से ही मतलब 2015
10 से एक्चुअली 2009 से मेरा थायराइड का प्रॉब्लम है। तो मतलब अचानक से मुझे पता चला कि मेरा थायराइड बहुत मतलब ये बढ़ गया है। तो इसलिए मेरा वो स्किन रैशेज़ बहुत होता था। तो ऐसे करके मैं जब 2010 से 15 तक कॉलेज में जा रही थी, उसके बीच मेरा ब्रेस्ट के पोर्शन में बहुत सारा लम्प्स टाइप का कुछ रैश निकलता था, जिसके लिए हम ब्रेसियर नहीं पहन पाते थे। तो उसके लिए मुझे कॉलेज बहुत एब्सेंट करना पड़ता था और हम लोग का कॉलेज में 75% अटेंडेंस मस्ट था। तो मेरा क्या हुआ, हर सेमेस्टर में मेरा अटेंडेंस लिस्ट में मतलब कम वाला अटेंडेंस जो लोग का नाम था, उसमें मेरा नाम रहेगा। ऐसा हर वक़्त होता था और हर वक़्त मुझे एक्स्ट्रा क्लास करके वो ठीक करना पड़ता था। ऐसे करके मेरा जो 7th सेमेस्टर था, उसमें जाके मेरा पॉक्स हो गया। तो एक्चुअली चिकन पॉक्स हो गया। हम मुझे इंटरनल मुझे दे मैं दे नहीं पाई। उसके बाद इंटरनल के बाद मैं जब सेमेस्टर देने के लिए फॉर्म भरने गई, तो प्रिंसिपल सर बोला कि नहीं होगा, तुम्हारा अभी नहीं होगा, तुम्हारा हर सेमेस्टर में ऐसा प्रॉब्लम होता है। ये शायद तुम मतलब हम लोग को बुद्धू बना रहे हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम उसके बाद सर को बोला कि सर देखिए मेरा सच में चिकन पॉक्स हुआ था, इसलिए मैं इतना दिन नहीं नहीं आ पाई। लेकिन सर नहीं ये सुने, सर बोले नहीं तुम्हें हम 7 सेमेस्टर नहीं तुम दे पाओगे, हम नहीं देने देंगे। तुम 9 के साथ 7 एक साथ दोगे। तो मैंने सर को बहुत रिक्वेस्ट किया, सर मैं बंगाली मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मुझे 2 सेमेस्टर एक साथ देना होगा तो 10 मतलब वो उसके टाइम 5 सब्जेक्ट था, तो 10 सब्जेक्ट मुझे एक साथ देना पड़ेगा। तो सर बोला नहीं हम लोग नहीं सुनेंगे, तुम्हें एक साथ ही देना होगा। तो मतलब वो भी मेरे लिए एक चैलेंज था कि 7 और 9 सेमेस्टर हम कैसे देंगे? क्योंकि एक दिन सुबह से एग्ज़ाम 10 बजे से 1 बजे तक, तो दूसरे दिन 3 बजे से मतलब वो 2 बजे से 5 बजे तक और एक एग्ज़ाम। ऐसे करके मतलब बाद में 1 दिन के बाद 1 दिन पूरा एग्ज़ाम हुआ। तो फिर जाके मुझे 2 सेमेस्टर एक साथ देना पड़ा और उस बार भी मैं दोनों सेमेस्टर में एक साथ फर्स्ट क्लास लाई। तो मैंने मतलब मैं नहीं सोची थी कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब सर मुझे बोला था कि तुम फेल करोगे तो करोगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एग्ज़ाम एक साथ ही देना होगा, हम लोग नहीं करेंगे। तुम्हें जो करना है तुम करो। तो फिर जाके कोई बात नहीं मतलब कुछ नहीं हुआ, तो मुझे 10 मतलब 7th और 9th सेमेस्टर एक साथ देना पड़ा और फिर जब रिज़ल्ट निकला तो मैं दोनों सेमेस्टर में एक साथ पास कर गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट्स रियली नाइस। बहुत अच्छा मैम, आप ये सब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी हिम्मत आ जाएगी कि भाई मेरा पढ़ाई हिंदी नहीं ना छोड़ना बहुत है। खराब है। फिर भी आप आज हो गया ना, आपका पूरा पढ़ाई हो गए ना, फर्स्ट क्लास भी आपको मिल गया। दैट्स रियली नाइस। और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? जी मैम। तो आपके घर वाले सभी आपके साथ हैं, वो भी अच्छी बात है। आपको एनकरेज करते हैं, वो चाहिए हमें, एनकरेजमेंट फ्रॉम आवर लव्ड वंस। मैम, अभी आपके काम के बारे में बात करेंगे। आप किस तरह के काम करते हैं? एक लॉयर होने के नाते आपके पास किस तरह के लोग आते हैं? हाँ, एक्चुअली मैं जब 2010 से मतलब मैं 2015 में पास आउट किए, उसके पहले मैं 2014 से इंटर्नशिप के लिए जॉइन किए थे कोर्ट में। तो उस टाइम तो सीनियर्स सर के साथ अंडर में काम करना होता था। लेकिन उसके बाद ऐसे करके हम जब पास आउट कर गए थे, तब जाके मेरा प्रेग्नेंसी के लिए मेरा वो जो प्रैक्टिस का वो बंद था, कुछ साल। तो फिर जाके मैं 2019 में मेरा मतलब ये जो प्रैक्टिस का सेशन वो फिर से स्टार्ट किए। मैं इसलिए मेरा मम्मी-पापा का मतलब मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे बच्चे को रखते हैं अपने पास, इसलिए मैं पूरा दिन काम कर पाती हूँ। वैसे मैं 2019 से 19 फरवरी में मैंने जॉइन किया ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क बोल के एक जो एनजीओ है, वो लॉ लॉ फर्म टाइप का है, मतलब वो ह्यूमन राइट्स को लेके फाइट करते हैं। तो मैं एचआरएल में मैं 2019 से 2020 2 तक हम काम किए। उसके बाद हम उस टाइम हम जो काम कर रहे थे एचआरएल में, तो हम दलित राइट्स,
SC/ST जो राइट्स होता है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स एंड एसिड अटैक्स, रिफ्यूजी राइट्स, मतलब वो रोहिंग्याज जो बच्चे लोग होता है, रोहिंग्याज लोग, इस ये सब के इन सब के राइट्स के ऊपर हम काम किए हैं। और स्पेशली वुमेन्स राइट, मतलब जो वुमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस में ये है, और 498 ए जिसके मतलब बहुत फिजिकल टॉर्चर ये सब होता है जिस वुमेन्स के साथ। इसके अलावा डिसेबिलिटी राइट्स और जो चाइल्ड राइट्स है, मतलब पॉक्सो केसेस जो होता है ना, बच्चे लोग का जो हैरेसमेंट, फिजिकल टॉर्चर, उसमें भी हम बहुत सारे काम किए हैं। और अभी प्रेजेंट में हम निष्ठा बोल के एक एनजीओ में, मतलब उन लोग का एक मेंबर हम है, हम उन लोग का पैनल लॉयर है। उन लोग के पास भी ऐसा मतलब वुमेन्स राइट्स के ऊपर और चाइल्ड राइट्स के ऊपर जो जो काम होता है वो सब हम देखते हैं। जी मैम, आपने कहा कि भाई एसिड अटैक विक्टिम्स का भी है, ऐसा राइट्स है और उनका भी केसेस होते हैं, तो आप इनके साथ कैसे डील करते हैं मैम? एक्चुअली एसिड अटैक विक्टिम्स के साथ मैं 2019 से लेकर 2-3 साल काम किए थे। अभी प्रेज़ेंट में हम उन लोग के जो केसेस है वो प्रेज़ेंट में डायरेक्टली डील नहीं करते, लेकिन उनको हम हमारी कोलकाता में ब्रेव सोल बोल के एक यूनिट है। तो ब्रेव सोल में हम लोग वो जो लीगल कुछ कैंप होता है ना, उसमें हम जाते हैं कैंप का ये सब करने के लिए, स्पीकर एज़ अ स्पीकर। और जब हम 3 साल पहले काम किए हैं उन लोग के साथ, तब डील करते पहले एक्च Yes, ma'am. I guess there's a small technical issue, friends. Please wait. जी मैम। यस डियर। एक्चुअली जब एसिड अटैक होता है और हम लोग को पता चलता, यस डियर। एक्चुअली जब एसिड अटैक होता था, तो वो लोग हम लोग के पास आता था और क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब डिस्क्रिप्शन देने के बाद हम लोग जो करते थे, हम लोग एफआईआर कर देते थे उन लोग के, मतलब एक्यूज़ के अगेंस्ट। और उन लोग को जो नीड होता था फाइनेंशियल और जो मतलब ट्रीटमेंट का, वो सब हम लोग एक मतलब देख के एक साथ करते थे कि क्या करना होगा, मतलब उस टाइम एचआरएल के थ्रू। तो उसके बाद जो कोर्ट केसेस होता था, मेरा काम था कोर्ट में जाके उन लोग के लिए अपीयर करना। तो मैं वही करती थी कोर्ट का काम जो होता है एज़ एन एडवोकेट। तो अभी मेरे पास वो लोग का केस नहीं है, क्योंकि अभी वो अलग ऑर्गनाइज़ेशन हुआ है और उधर अलग से लॉयर है। हम एज़ एन एडवोकेट उन लोग को लीगल कैंप जो होता है, वो हम लोग उधर जाके उन लोग को समझ मतलब लीगल अवेयरनेस कैंप में हम एज़ अ स्पीकर जाते हैं। जी जी। बच्चों को लेके, छोटे बच्चों को लेके पॉक्सको एक्ट के बारे में, इसके बारे में हमें थोड़ा सा रोशनी, इफ यू कैन पुट सम लाइट ऑन दैट, इसके हाँ, बारे में। पॉक्सो में ऐसा होता है क्या, मतलब मेरे पास अभी इसी टाइम में 10 से ज़्यादा पॉक्सो केसेस हैं। और सब केसेस में बच्चे लोग 10 साल, 9 साल, 8 साल ऐसे करके हैं। और मैक्सिमम जो केसेस है सबका ही मतलब ऐसा हुआ है कि पास में कोई दादाजी, मतलब कोई दादाजी, और किसी को दादा बोलते हैं, किसी को मामा बोलते हैं, किसी को अंकल बोलते हैं, ऐसे करके वो लोग उन लोग को मॉलेस्ट करते हैं। मतलब मेरे पास एक केस है जिसको हम मतलब आप लोग के पास पूरा सिर्फ़ इंसिडेंट बोल पाएँगे, नाम कुछ नहीं बोल पाएँगे। ऐसा हुआ कि कोरोना के टाइम से वो बच्चे को मतलब लास्ट 23 तक वो बच्चे को पास में एक दादाजी था, वो आके हर दिन मॉलेस्ट करता था। उसका वेजाइना में टच करता था, उसका निपल्स में ये प्रेस करके चला जाता था, मतलब हर दिन, किसी भी दिन वो नहीं छोड़ता था।
लेकिन वो बच्चा ऐसा मतलब वो बच्ची ऐसी मतलब मासूम है, वो किसी को बोल नहीं पाती थी क्योंकि उसको डरा हुआ जाता था। उसको बोला जाता था कि अगर तुम बोलोगी, तो तुम्हारी मम्मी काम से लौटती है, तब उनको लोकल ट्रेन से हम धक्का देके फेंक देंगे। तुम्हारी पापा को भी मार देंगे। ऐसे करके वो उसको डरा हुआ जाता था, इसलिए वो नहीं बोलती थी। तो तब जाके 2023 का अप्रैल में वो फिर आई थी उसके घर में और ऐसा कर रही थी, उसके बाद मतलब उस टाइम उसकी एक अंकल और एक मौसी ने देख लिया, वो मतलब इंसिडेंट घटते हुए। तब जाके वो बच्ची को अभी मतलब सेफ है बच्ची क्योंकि वो जो एक्यूज़्ड है वो अभी तक जेल में है। एक्चुअली मेरे पास जब वो केस मतलब मेरे पास लेके आई थी वो लोग, तब केस का बहुत ही खराब कंडीशन था क्योंकि वो सब ठीक से नहीं बोल पाती थी। मतलब वो बच्ची बहुत डरी हुई थी, वो ठीक से नहीं बोल रही थी कि उसके साथ क्या हुआ, एक्चुअली क्या-क्या हुआ। उम, तो उसके बाद मैं उसके पास बैठी, उसको थोड़ा काउंसलिंग करके बहुत सारा वो जो ये है, वो सब निकला बात कि ऐसा-ऐसा मुझे टच किया, ऐसा-ऐसा किया। तब जाके पुलिस को जाके वो खुद जाके बोली कि देखिए मैम मेरे साथ ऐसा हुआ। तब जाके पुलिस अच्छा तरह से स्टेप लिया और वो मतलब जो एक्यूज़्ड है वो अभी तक जेल में है। उसको बेल भी नहीं मिला। वो बहुत बार हाई कोर्ट में भी जा चुका है, लेकिन उसको अभी तक बेल नहीं मिला। ऐसे जी। ही करके 2020 में भी एक केस हुआ है, उसका भी एक्यूज़्ड है 75 इयर्स और जो विक्टिम गर्ल है, उसका घटना के टाइम पे एज था 10 इयर्स। तो उसको मतलब गुआवा है ना गुआवा, तो उसको गुआवा देंगे ऐसा बोल के उसको रोज़ बागान में लेके जाते थे वो दादाजी। वो दादाजी बोलते थे और एक दिन बागान में लेके गए और उसका मतलब पेनिस बच्चे के वेजाइने में टच कर रहा था वेजाइना में। तो उस टाइम कुछ बाहर से कुछ गर्ल्स एडल्ट जो है गर्ल्स लोग देख लिया और वो लोग लेके मतलब चिल्लाया और बच्चे को उधर से लेके आया। ऐसे करके वो केस मतलब हम लोग के सामने आया और वो एक्यूज़्ड भी 2020 से अभी तक जेल में है। मतलब बहुत दिन तक वो मतलब कोशिश किया बेल पाने के लिए लेकिन हम लोग नहीं पाने दिए, तो अभी तक वो करेक्शनल होम पे ही है। जी, जी। Thank you, ma'am, for sharing the incidents. Thank you so much. My dear friends, stay safe. छोटे बच्चों का ख्याल रखिए, उनका शोषण नहीं करना है, सही तरीके से उनका देखभाल करनी है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि भाई अभी तक वो लोग जेल में है, बाहर नहीं निकले, वहीं पर रहना है उनको, क्योंकि ये ऐसे ऐसे चीज करने से माफी कभी नहीं देना है। यस, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, आप रेफ्यूजी राइट्स के इसके में यू आर आल्सो डीलिंग विद रेफ्यूजी राइट्स, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे मैम कि भाई आप किस हाँ, तरह की हेल्प करते एक्चुअली हैं? रिफ्यूजी राइट्स के ऊपर मेरा पहले का कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं था। मैं आफ्टर जॉइनिंग एट एचआरएलएन उसके बाद एचआरएल में मुझे सिखाया गया था कि कैसे रिफ्यूजी राइट्स के ऊपर काम करना है। तो उधर मेरा जो सीनियर्स था, जो सीनियर्स एडवोकेट्स था, वो सब सर मुझे मतलब जैसे इंस्ट्रक्शन देते थे, हम ऐसे करके जाके काम करते थे। एक्चुअली मेरा जो घर है, उधर उधर से रिफ्यूजी राइट्स का जो मतलब रिफ्यूजी राइट्स के लिए जो केस जिस कोर्ट में चलता था उस टाइम, उसमें जाने-आने का 6 घंटा लगता था मुझे। जाने का 3 आवर्स, आने का 3 आवर्स और लेकिन फिर भी मैं जाती थी क्योंकि मैं फर्स्ट दिन जब गई थी, मुझे बहुत खराब लगा था कि वो लोग बहुत ही मतलब बहुत ही दुःख में है। मतलब उन लोग का ये सिचुएशन बहुत खराब था। वो लोग ठीक से खाना नहीं वो लोग को मुझे मतलब मुझे बोला गया वो लोग बोला था मुझे कि दीदी हम लोग को ना ठीक से खाना नहीं मिलता है। बहुत परेशानी होता है खाने का। वो लोग का छोटा-छोटा बच्चा लोग था, वो मुझे देख के खाना माँग रहा था। तो बहुत बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मैं कुछ खरीद के उन लोग को दिए हूँ।
ऐसे तो फिर जाके तो ये बंद हो गया, मतलब हम लोग वो जब कस्टडी लॉकअप में आते हैं तो हम लोग नहीं दे पाते हैं कुछ। फिर मैं स्पेशल परमिशन करवा के कुछ दे, ड्राई फूड अगर कुछ फ्रूट तो मुझे परमिशन मिला था, उस टाइम हम जाके दे के आए थे। ऐसे करके उन लोग के लिए जो लीगल फाइट होता है वो हम किए थे। और एक केस में मुझे मतलब मैं 3 साल में मेरे पास 4-5 रिफ्यूजी राइट्स का केस था। उनमें से एक केस था जो मतलब एविडेंस स्टार्ट होने का पहले ही हम जज को मतलब बोले थे, एक पिटीशन करके उन लोग को छोड़ने के लिए बोले थे, डिस्चार्ज करने के लिए। वो बरासात नाम का एक कोर्ट है, बरासात में लर्नेड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हम अपील किए थे कि इन लोग को छोड़ने के लिए, कि ये लोग तो ऐसे मतलब अ, इसको इच्छा हुआ कि भारत में हम चले जाएँ, ऐसे तो नहीं आया ना। इन लोग का उस टाइम प्रॉब्लम था, मरने का डर था कि हम लोग मर जाएँगे इधर रहेंगे, तो इसलिए उसको आना पड़ा। तो आप अगर छोड़ देंगे तो ये लोग बाहर निकल के फिर से अपना ज़िंदगी जी पाएँगे। ऐसे करके अपील करने के बाद यूएनएचसीआर से उन लोग को एक वेरिफ़िकेशन ईमेल करने के लिए जज बोला था। उसके बाद यूएनएचसीआर से ईमेल मिला, उसके बाद वो ईमेल कन्फर्मेशन होने का बाद वो जज वो 7 लोग को छोड़ दिया था। मतलब 3 उनमें से 3 फीमेल था, 1 मेल था और बाकी 3 बच्चा था, छोटा बच्चा। तो वो सब लोग मतलब बाहर आके बहुत खुश हुआ कि हम लोग 2 ढाई साल से जेल में मतलब करेक्शनल होम के अंदर था। हम लोग का कोशिश मतलब छोड़ गया था, हम लोग का यही नहीं था कि हम लोग कभी भी बाहर निकल पाएँगे। तो वही मेरा मतलब लाइफ में एक सक्सेस है कि मैं इतना 7 रोहिंग्यास को छोड़ पाई बाहर, मतलब निकल के लिए एक हेल्प कर पाई, यही हुआ। ऐसे करके हम लोग करते थे रोहिंग्यास का केस। जी, जी मैम। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच। अब दलित राइट्स भी आप इसमें भी आप काम कर चुके हैं दलित राइट्स के को लेकर, तो ये क्या होता है मैम? और आज तक भी क्या दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं हाँ, जैसे पहले दलित के राइट्स वक्त? तो एससी-एसटी एक्ट्स तो है, दलित राइट्स के ऊपर हम अभी भी काम कर रहे हैं। एक्चुअली एससी-एसटी एक्ट्स में दलित लोगों को मतलब जो लोग एससी-एसटी होता है ना, वो लोग को बहुत ही जो जनरल कास्ट लोग होता है मतलब सब लोग नहीं, कुछ-कुछ लोग बहुत ही इंसल्ट करते हैं। मतलब ऑफ़िस में कॉलेज में, बाहर मतलब स्टूडेंट्स लोग का भी इंसल्ट करता है और जो ऑफ़िस में काम करती है एक साथ, उसको भी सीनियर्स ऑफ़िस मतलब सीनियर्स जो है ऑफ़िस में वो लोग तू दलित है, तू उधर जाके बैठ और तेरा छुट्टा हम नहीं खाएँगे, ऐसे करके मतलब बहुत उल्टा उल्टा-फुल्टा बोलते हैं और कुछ इधर-उधर हो जाता है तो उनको गाली देना, बहुत सारा ऐसा काम होता है। तो ये सब लेके हम बहुत सारा केसेस डील कर चुके हैं कि दलित लोग को ठीक से नहीं मिल ऑफ़िस में ठीक से जगह नहीं मिल रहा है, वो लोग को अलग से देखा जा रहा है, ऐसे करके कुछ केसेस हुआ है। और दलित होने के कारण जनरल कास्ट के साथ उन लोग को बहुत मतलब प्रॉब्लम हुआ। उन लोग को गाली देके, छोटा करके बहुत झगड़ा किया, मारा-पीटा, ऐसा काम हुआ है, तो हम जाके वो केसेस डील किए हैं। जी, जी मैम। अब सीनियर सिटीजन्स को लेकर आप किस तरह के काम करते हैं? उनके क्या, कौन आके कंप्लेन करते हैं कि भाई सीनियर सिटीजन्स को तकलीफ हो रही है? क्या खुद आते हैं वो लोग या कोई उनके साथ आते हैं? हाँ, एक्चुअली सीनियर सिटीज़न के बारे में भी जो बोलना है, ये भी मतलब मेरा लाइफ में एक क्या बोले एक मेमोरेबल इंसिडेंट है। 2019 में ही हुआ है एंड में। हम लोग के ऑफिस में ही एक सीनियर सिटीज़न आई थी उस टाइम तो वो एक्चुअली पहले जो सीनियर सिटीज़न आई थी, वो पहले 13 साल जेल में थी, एक केसेस के बारे कारण। तो कॉन्विक्शन लगा था उनको। तो उसके बाद जेल के अंदर उनका जो बिहेवियर बहुत अच्छा काम करने के लिए उसको 13 साल बाद छोड़ा दिया गया। तब छोड़ने के बाद वो जब घर घर वापस गई, तो उसकी जो लड़की है, माँ को लड़की मतलब बहुत मारती थी, अपनी माँ को।
अपनी माँ को फेंक के उसको मतलब ये से मतलब उसके ऊपर थूकती थी। खुद टॉयलेट करके उसके ऊपर फेंक देती थी। ऐसे-ऐसे करके बहुत मतलब परेशान करती थी, उसको मारती थी, रात में खाना नहीं देती थी। तो वो आके हम लोग के पास कंप्लेन किया और तब जा उस टाइम मेरा जो ऑफ़िस था उधर से उनका जो घर था वो 3 घंटा का रास्ता था। तब वो एक दिन दोपहर में आई और मैं ऑफ़िस में बोला कि ठीक है हम उनको जाके लेके जाते हैं, थाना में जाके कंप्लेन कर देते हैं। तो हम उनको लेके गए थाना में, कंप्लेन किए, थाना में बैठे रहे। उस टाइम थाना में जो ऑफ़िसर उनके लिए हमें वेट करना पड़ा। थाना में जो ओसी होता है ना, तो ऑफ़िसर इंचार्ज नहीं था, तो हमें बोला गया कि ये माँ-बेटी का झगड़ा बहुत दिन से चल रहा है मैडम, तो हम लोग परेशान हो गए हैं। तो आपको ऑफ़िसर ओसी सर के लिए वेट करना होगा। आप वेट कीजिए, वो आएँगे, उसके बाद हम बोल पाएँगे कि ये कंप्लेन हम कैसे लेंगे। एक्चुअली कंप्लेन अगर पुलिस नहीं लेता है तो हम थ्रू कोर्ट कर देते। लेकिन उस दिन ऐसा प्रॉब्लम था कि उस दिन उनको घर में जाना ही था। वो बोला कि हम अगर घर में नहीं जाएँगे तो हम बाहर कहाँ रहेंगे? ऐसा प्रॉब्लम था और घर में उनका बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स भी था, वो भी उस दिन जाके उसको लेना था। नहीं तो वो उसका लड़की बहुत थ्रेट कर रहा था, हम सब जला देंगे, ऐसे करके वो करेंगे। इसलिए हमको उस दिन उनको घर में भेजना था। इसलिए हम बहुत देर तक वेट किए ऑफ़िसर के लिए और रात 10 बज गए कि हम लोग थाना में था। 10 बजे के बाद ऑफ़िसर आए, उसका कंप्लेन लेके उनको सेफ करके घर में दे के आए। उसके बाद मुझे बोला कि आप अभी चले जाइए आपका लास्ट ट्रेन मतलब ट्रेन अभी इसके बाद नहीं मिलेगा। फिर जाके मैं मतलब 12 बजे के कुछ पहले मुझे ट्रेन मिला और मतलब उस ट्रेन में कोई भी पैसेंजर नहीं था मेरे अलावा। उस दिन मतलब मेरा सब दोस्त लोग मुझे फ़ोन कर रहा था, बोल रहा था कि तुम उतने दूर से अभी घर मत आओ। क्योंकि वो जगह अच्छा नहीं है, उतने दूर से तुम अभी घर मत आओ, इतना रिस्क नहीं लो, तुम उधर कहीं रह जाओ। तो मुझे लगा कि मेरा अभी बच्चा भी घर में है, वो फिर रोएगा, मैं उसको छोड़ के इतना दूर अभी एक रात कैसे रहूँगी? इसके लिए मैं चली आई। तो जो ट्रेन मैं पकड़ी उसमें सिर्फ़ ड्राइवर था और मैं थी मतलब पूरा ट्रेन खाली। जब मैं ट्रेन में उठी तो ट्रेन का लाइट भी ऑफ हो गया। पूरा मतलब 5-6 स्टेशन ट्रेन का लाइट ऑफ थी और उस टाइम मेरा फ़ोन का चार्ज भी आउट हो गया। मतलब फ़ोन भी बंद हो गया। मतलब सिचुएशन बहुत ही खराब था। उसके मतलब वो तो अपना घर चला गया सीनियर सिटीज़न जो दादी था, लेकिन मैं कैसे लौटूँगी ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया था। फिर जाके रात 1:30 बजे मैं हावड़ा स्टेशन में पहुँची और उसके बाद मतलब ऐसे करके पहुँच गई भगवान के नाम लेते-लेते। तो उसके बाद 1:30 बजे हावड़ा स्टेशन में पहुँची, उधर जाके बहुत कोशिश के बाद एक टैक्सी मिला और रात को 2:30 बजे से पौने 3 बजे हम घर घर लौटे। तो ऐसे करके हम लोग को स्ट्रगल करके मतलब रिस्क लेके काम करना पड़ता है। आप बड़े हिम्मत वाले हैं मैम। यस, वे आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, बहुत बहुत हिम्मत वाले हैं। हम तो शायद आउट हो जाते, नहीं कर उतना सह नहीं पाते जितना आप सह रहे हैं ये सब, इतना स्ट्रांग हिम्मत वाले रहकर ये पूरे काम करना आम बात नहीं है। बहुत हिम्मत और स्ट्रेंथ की जरूरत रहता है, एंड यू हैव ऑल ऑफ दैट, यू हैव लॉट ऑफ करेज। यस, आई रियली हैट्स ऑफ टू यू फॉर ऑल ऑफ दैट। थैंक यू। डियर मैम, अभी हम लेके प्रिजनर्स राइट्स के बारे में बात करेंगे अभी। तो आप इसमें भी आप बहुत अ, ये कर चुके हैं काम, तो इसके बारे में। एक्चुअली प्रिजनर्स राइट्स के ऊपर जो रोहिंग्यास के लिए हम काम किए हैं ना, तो वो भी प्रिजनर्स ही था। तो उन लोग को हम जाके देखते थे प्रॉपर टाइम टू टाइम उसके साथ मीट करते थे क्योंकि उन लोग का तो कोई मतलब रिलेटिव्स इधर नहीं था। उन लोग के कोई रिलेटिव्स के साथ उन लोग को कनेक्शन भी नहीं था। तो हम लोग का उस टाइम ये काम था कि हम लोग जाके उनसे मिले वीक में 1 दिन और
मंथ में 2 दिन, ऐसे करके हम कोशिश करते थे कि उन लोग को जाके मिले। अगर उन लोग को कुछ चाहिए तो वो खरीद के दे और उन लोग का मतलब कैसे वो लोग जल्द से बाहर निकले, मतलब जल्दी-जल्दी वो करेक्शनल होम से बाहर निकले, अपना ज़िंदगी जिए, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। ये है प्रिज़नर्स, और भी बहुत सारा प्रिज़नर्स है जो लोग मतलब मर्डर केस में और दूसरा कुछ केसेस में वुमेन्स प्रिजनर्स जो लोग अंदर था, उस टाइम वो लोग का केसेस में हम डील कर रहे थे अदर्स एडवोकेट्स के साथ। मतलब वो केस मेरा अंदर नहीं था, सीनियर्स था, उनके साथ हम असिस्ट कर रहे थे। तो उस टाइम मुझे जेल हर मतलब वीक में 2-3 दिन जेल जाना पड़ता था करेक्शनल होम में, जाके उन लोग से मीट करना, उन लोग के साथ बात करना, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा करके वो सब जान के मुझे मतलब आके वो सब लिख के फिर कोर्ट में जमा करना होता था। ऐसे करके एक कैंसर पेशेंट था जिनका जो लाइफ कन्विक्शन था जिसका, तो हम लोग उस टाइम ये केस मैं खुद नहीं डील किए हैं, मेरा सीनियर था, लेकिन मुझे जो असिस्ट करने का जो चांस मिला, वो है मैं वो कैंसर पेशेंट को जाके जेल में मीट करती थी और उसका जो मतलब तबीयत का जो कंडीशन है, उसका क्या लग रहा है, उसका मेंटल ट्रॉमा कैसे है, ट्रॉमा में वो है, वो सब लाके नोट्स करके मैं सीनियर को देती थी और सीनियर जाके जब कोर्ट में बोलती थी कि ऐसा-ऐसा है, वो सुन के कोर्ट ने उनको मतलब करेक्शनल होम के बाहर आने का परमिशन दिया। अभी वो करेक्शनल होम पे नहीं है, वो अपने घर में मतलब होम अरेस्ट जो होता है, गृहबंदी ऐसे ऐसे वो घर में है। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी पाएँ मतलब रही है। जो जगह उसको जाना है, वो जा रही है। अच्छी तरह से मतलब जीने का कोशिश कर रही है अभी। ऐसे करके हम लोग काम किए हैं। Thank you very much, ma'am. Thank you so much. Ma'am, we will now talk about people with physical disabilities. आप इनके भी हक के लिए लड़ चुके हैं, इनके लिए भी काम कर चुके हैं, इसके बारे में। हाँ, फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ एक्चुअली डिसेबिलिटीज़ एक्ट तो हो गया है, लेकिन अभी तक इन लोग के लिए कौन-सा कोर्ट मतलब कौन-सा जज इनके लिए डील करेगा केस, ये पर्टिकुलर कोर्ट रूम अभी तक नहीं मिला हम लोग को। मतलब डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर पर्टिकुलर कोर्ट रूम अभी तक नहीं मिला। इसके लिए ये केसेस को डील करना बहुत हम लोग के लिए टफ हो जा रहा है दिन-दिन। तो हम लोग बहुत पीआईएल फाइल हो चुका है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अगर हम लोग को अच्छा-सा कोर्ट मिलेगा कि वो वो जज सिर्फ़ डिसेबिलिटी मैटर्स ही सुनेगा, तो और भी अच्छा होगा। तो ये सब राइट्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और डिसेबिलिटी मैटर्स में मैं एक दुर्गापुर में एक मैटर्स के लिए जाती हूँ, तो उधर एक बच्चा को मतलब डिसेबल बच्चा जो डिसेबल होम पे था, उसका उम्र था 22 साल, तो वो डिसेबिलिटी होम पे था, दुर्गापुर में एक होम है, मैं नाम नहीं लूँगी अभी होम का। तो वो होम पे था लेकिन होम पे उन लोग को ऐसा मतलब टॉर्चर किया जा रहा था कि वो बच्चे को रात में ओवरडोज़ का मतलब नींद वो बच्चा नहीं सो रहा था इसलिए उसको इंजेक्शन का ओवरडोज़ दे दिया और उसके लिए बच्चा सुबह को मर गया। और वो बच्चे को लेके वो लोग आईसीयू में एडमिशन करके बच्चा बच्चा डेड हो गया। उसके बाद उसके मम्मी-पापा को कॉल किया कि आओ आपका बच्चा कोई प्रॉब्लम में है। तो वो जाके तब उसके मम्मी-पापा जब आए ये देखे कि उसका बच्चा मरा हुआ है मतलब कोई कोई सेंस ही नहीं है बच्चे का। तब जाके केस हुआ, मर्डर का केस हुआ। अभी वो केस पेंडिंग है, चल रहा है। वो केस के लिए भी मेरा मतलब वो पहले का जो मैं सीनियर सिटीज़न वाला मेमोरेबल इंसिडेंट आपको बोला, वैसा ही इस केस में भी मेरा एक मेमोरेबल इंसिडेंट है। मैं एक दिन मतलब पिछले साल समर के टाइम दुर्गापुर कोर्ट में दुर्गापुर आसनसोल में सुबह को कोर्ट होता है। मतलब बहुत गर्मी के लिए कोर्ट ट्रांसफर होके मॉर्निंग कोर्ट होता है। तो मैं इस मैटर का वो लोग बेल फाइल मतलब जो लोग एक्यूज़ लोग बेल के लिए वो लोग एप्लीकेशन किए थे, तो वो बेल अपोज़ करने के लिए मैं पहले दिन रात को आसनसोल में गई थी।
क्योंकि वो नेक्स्ट दिन सुबह को मुझे कोर्ट में जॉइन करना है। उस टाइम भी मेरा साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मैं जब गई आसनसोल में, रात को 11 बजे पहुँची आसनसोल स्टॉपेज में, बस स्टॉप में, तब जाके पूरा रास्ता खाली था, कोई भी मतलब मुझे नहीं मिल रहा था, मैं कैसे होटल तक पहुँचूँ? होटल पहले से बुक किया हुआ था, लेकिन होटल तक पहुँचने के लिए मेरा पास मतलब कैसे पहुँचूँ, मेरा कोई उपाय नहीं था। उसके बाद मैं बैग लेके चल रही थी, चलते हुए मुझे एक ऑटो ऑटो मिला, जो ड्राइवर हिंदी में बात कर रहा था। तो मुझे बोला, "कहाँ जाना है मैडम?" मैं बोला, "ऐसे-ऐसे होटल में जाना है उधर।" तो बोला, "ठीक है, उठिए, चलिए, हम लेके जाएँगे।" तो मैं बोला कि, "कितना पैसा लोगे?" बोले, कोई ज़्यादा नहीं लेंगे, कम नहीं लेंगे, आप चलिए ना, कोई बात नहीं, अब अकेली है इतने रात में।" तो वो मुझे उठाया, उसके बाद मतलब थोड़ा देर बाद जाने के बाद मुझे ऐसे लग रहा था कि वो दूसरा गली में जा रहा है, क्योंकि वो ना एक मतलब अ, ऐसा लाइट्स नहीं है, लाइट्स ऑफ है, ऐसा करके ये अंधेरा में मुझे लेके जा रहा था ऑटो लेके। तब मुझे मतलब माइंड में तब मेरा जो फ़ोन का कोई नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, मैं किसी को फ़ोन करूँ, कॉल करूँ। तो इसके टाइम मैं क्या किया, मुझे मतलब तत्क्षणात जो ये हुआ कि अभी क्या करना चाहिए, तो मैंने फ़ॉल्स कॉल किया फ़ोन में, मतलब उसको सुनाने के लिए। फ़ॉल्स कॉल किया कि हाँ मैं ना अभी इस जगह पे हूँ, आपके साथ मैं अपना लोकेशन शेयर कर दी हूँ, तो आप देखिए मैं ठीक जगह में जा रही हूँ या नहीं। तो उसके बाद मैं बोला, ओह! अच्छा भूल है, ये रॉन्ग साइड है। तो मैंने ड्राइवर को बोला, देखो मुझे थाना से कॉल कर रहा है ऑफिसर कि मुझे अभी थाना जाना है, आसनसोल थाना में। जो मेरा होटल है वो तो थाना के पास ही था, तुम तो दूसरी जगह में मुझे लेके जा रहे हो। वो बोल रहा है तुम बात करो ऑफिसर से फ़ोन में अभी। तो जब बोला तो मतलब ड्राइवर मतलब ऐसे शॉक्ड हो गया, बोले, "नहीं, नहीं मैडम बात करने का ज़रूरत नहीं, मैं लेके जा रही हूँ आपको।" तो तब जाके वो जल्दी से जाके दूसरा घुमा के मुझे होटल के पास मतलब पहुँचा दिया। तब मुझे समझ में आया कि ये दूसरा कुछ प्लान था उसका। लेकिन मतलब मैं वो झूठ बोल रहा था इसलिए मैं सेफ हुआ, नहीं तो मेरा बहुत उस दिन नसीब खराब था। तो ऐसे करके मुझे हम लोग को काम करना पड़ता है। जी, जी। आप ऐसे बोल रहे हो तो मुझे डर लग रहा है। आई नो सबको डर लगेगा अगर इतना तो फिर भी आप इतना हिम्मत करके जा रहे हैं और कर रहे हैं तो यू हैव अ लॉट ऑफ करेज बट आई वुड रियली एडवाइस यू स्टे सेफ यू नेवर नो कि भाई है दुनिया हाँ, कैसी है ना stay safe you're a very strong person all I can say and wish you like you stay strong like that ऐसे हिम्मत वाले रहना है. Yes, dear. So, dear friends, have you seen this young lawyer? How much she is into it? It's not an easy work, but still she's fighting for the rights of others. This is how we have to contribute to the society. इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल फैक्ट टॉक्स जहां पर शेयरिंग होती है जेन्युइन शेयरिंग जेन्युइन एक्सपीरियंसेस. यस डियर. डियर मैम, अब वन लास्ट एंड मेजर क्वेश्चन जहां पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अभी दैट इज द राइट्स ऑफ विमेन. लास्ट हमने रखा इस क्वेश्चन को तो बहुत सारे जो बहनें हैं बाहर किस तरह की शिकायत लेके आते हैं या किस तरह के दुख दर्द आपके साथ बांटते हैं और जस्टिस के लिए मांगते हैं न्याय के लिए गुहार कर. तो इस आंसर को देने के पहले मैं और एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि जी. जस्टिस ऑफ वुमन तो ठीक है, लेकिन जस्टिस ऑफ मैन भी है अभी। क्योंकि मैं ऑल बंगाल मेंस फोरम करके जो पुरुषों का अधिकार लेके वुमन मैन राइट्स को लेके जो काम करते हैं हम लोग का फाउंडेशन, वो उसमें भी मैं काम करती हूँ उन लोग के साथ। तो वुमन लोग जैसे ये मॉलेस्टेशन, रेप विक्टिम ऐसे होता है ना, सेम मैन के साथ भी होता है। मेन, वुमन बोथ आर अफेक्टेड। एक्चुअली क्या है, हम लोग बहुत सारा केसेस ऐसे देखते हैं जिसमें अ, वुमन लोग आके बोलती है कि हम लोग को ससुराल से मारा-पीटा गया, ऐसा-ऐसा हुआ है, डाउरी क्लेम किया। तो इसमें से ना बहुत सारा झूठ भी होता है, मतलब फ़ॉल्स केसेस भी होता है। तो हम लोग को ऐसे तरह से देखना होगा कि
कौन-सा केस सच है और कौन-सा केस झूठ है। मतलब सब केस सच नहीं होता है। सब मतलब हम खुद एक फीमेल है, इसलिए हम वो फीमेल जो बोल रहा है वो सही है, ऐसे अगर सोचेंगे तो इसमें हम मतलब गलतियाँ में पा दे देंगे आप हम लोग का। तो ऐसे करके हम लोग को देखना पड़ता है कि जो फीमेल हम लोग के पास आया है वो सच में विक्टिम है या नहीं है। अगर सच में विक्टिम है तो हम लोग कोशिश करते हैं उन लोग को प्रॉपर गाइड करने के लिए। कैसे एफआईआर करना होगा, कैसे कौन-सा केस करना होगा, कौन-सा केस करने से वो लोग सेफ रहेंगे, कौन-सा केस करने से वो लोग मतलब मेरे पास कुछ दिन पहले एक केस आया था जिसमें उसका हस्बैंड उसको मतलब बहुत मारा और मारा-पीटा। उसके बाद वो एक ये है ईंट होता है ना, ब्रिक, वो लेके उसको ये जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर में मारा और रिंग फिंगर उसका ब्रेक हो गया, ठीक है? एक हाड़ में तो मोच आ गया। तो वो मुझे फ़ोन करके बोला कि मुझे अभी मेंटेनेंस का कुछ केस नहीं करना है, मुझे ऐसा केस करना है जिसमें हम उसको जेल भेज सकेंगे। वो कुछ दिन करेक्शनल होम पे रहे, ऐसा हम मुझे केस करना है। तो मैंने बोला ठीक है, तुम जाओ थाना में जाओ, ये बोलो, ये जो हुआ है तुम्हारे साथ, सब कुछ बोल के तुम लिखाओ, एफआईआर लिखाओ, उसके बाद हम देखेंगे एफआईआर होने के बाद। तो वो थाना में गए और थाना में ऑफिसर उसको बोला, "अगर तुम ऐसे केस करोगे तो तुम ससुराल में कैसे रहोगे? केस करके तो ससुराल में नहीं रह पाओगी।" तो उन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया कि दीदी ऐसे-ऐसे बोल रही है कि अगर केस करोगी तो ससुराल में नहीं रह पाऊँगी। तो मैंने बोला नहीं तुम बोलो मुझे केस करना है। मैं ससुराल में रह पाऊँगी या नहीं पाऊँगी वो मैं देखूँगी। मेरा वकील देखेगी। लेकिन आप मुझे केस कर दीजिए। तो वो केस करने के बाद उसका हस्बैंड को अरेस्ट करके उसका हस्बैंड 56 डेज़ लॉकअप में था। मतलब करेक्शनल होम में था 56 डेज़ और 56 डेज़ करेक्शनल होम पे था। इसके लिए मतलब वो लोग बहुत कोशिश किए बेल मिलने के लिए, लेकिन उनको बेल नहीं मिला क्योंकि हम हर एक डेट में अपोज़ करते थे। ऐसा हुआ, नहीं मिलना चाहिए। तो 56 डेज़ बाद भी उसको बेल नहीं मिलता अगर वो वाइफ़ खुद से नहीं चाहता था। लास्ट में वाइफ़ बोली मुझे कि दीदी अब उनको छोड़ दो। अब नहीं बोलो कुछ अभी छोड़ दो बहुत दिन हो गया है 56 डेज़ बहुत खराब लग रहा है मुझे, मेरा एक छोटा बच्चा भी है, बच्चा भी पापा के लिए रो रहा है, तो अभी बोल दो अभी ठीक है हम देखते हैं फिर वो क्या करेगा। उसके बाद वो उसको बेल मिला, अभी वो लोग बहुत अच्छा से है फैमिली मतलब 3 एक साथ ही है, लेकिन कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, लेकिन मार-पीट बंद है। मतलब वो अच्छा है। मतलब पहले जो बहुत झगड़ा, मार-पीट ऐसा होता था, अभी पूरा बंद है। तो अभी वो बहुत सेफ है। तो ऐसे करके और एक केस आया था मेरे पास जिसमें वो फीमेल मुझे फ़ोन करके बोल रहा था कि मेरा हस्बैंड ऐसा-ऐसा है, मुझे निकाल दिया घर से। आप थोड़ा केस कर दीजिए, मुझे डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना है घर में वापस जाने के लिए। उसके बाद मैंने उसको पूछा कि आपको इतना दिन से मारा, तो आपने कुछ किया? आपने कोई कंप्लेन नहीं किया? कोई मतलब कोई मेडिकल नहीं किया? तो उन्होंने उसके बाद मेरे ऊपर चिल्लाया। हाँ, मारने से मेडिकल करेंगे, आप क्या सोचते हैं? आप एक फीमेल हो के मुझे ऐसा बोल रहे हो, ऐसे करके वो मुझे मेरे ऊपर चिल्लाया। तब जाके मुझे मतलब डाउट हुआ कि ये कुछ गलत है, मतलब इसमें दाल में कुछ काला है। फिर जब हम सर्च किए तो मुझे पता चला कि वो वाइफ़ का ही प्रॉब्लम है। वो वाइफ़ किसी और के साथ अफ़ेयर चल रहा है, इसलिए हस्बैंड को वो ट्रैप में फेंकने के लिए एक प्लान कर रहा है। तो ऐसे करके हस्बैंड्स अगर हम कर देते थे ना उसके बात सुन के, तो हस्बैंड के अगेंस्ट मेरा रॉन्ग डिसीज़न हो जाता था। तो ऐसे करके हम लोग को देखना है कि हम लोग के पास जो केस आया, वो सच में ही वो अफेक्टेड है, सच में ही वो विक्टिम है, तो हम लोग उनके लिए लड़ेंगे। वो मेल है या फीमेल है।
यस डियर, वेरी वेरी नाइस। आई लाइक द वे जस्टिस, आप सभी को बराबर देखना है एक ही नजर से, हाँ, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। हाँ। दैट्स वेरी नाइस। मुझे भी अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है जहां पर न्याय, सच्चा न्याय मिले। दोनों को एक ही नजरिए से देखना है, लुक एट एवरीवन विद इक्वालिटी। डियर मैम, अभी एक क्वेश्चन मेरे मन में है, ये लास्ट क्वेश्चन है मैम। तो अम, अत्याचार सिर्फ मारने से होत नहीं, मारते हैं, मारपीट करते हैं, फिजिकल अब्यूज रहता है, लेकिन ऐसा भी अब्यूज रहता है जहां गाली गलौज या साइलेंट ट्रीटमेंट या फाइनेंशियल फाइनेंशियल राइट्स को होल्ड करना है, ऐसे बहुत सारी बातों से या बिन बात करे, तो ऐसा भी टॉर्चर होता है फैमिलीज में, हाँ, हाँ, इधर हाँ, मेल ऐसा एंड तो फीमेल के साथ। तो इस तरह के केसेस के लिए आप लोग क्या करते हैं लॉयर्स, और ये जो कोर्ट क्या करेंगे, व्हाट इज द रेमेडी? एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत सारे वायलेंस में डिवाइड करते हैं। आप जो बोले फाइनेंशियल राइट्स और मतलब फाइनेंशियल ब्लॉकेज कर देना, हम उसको पैसा नहीं देंगे। जो बहुत सारा वाइफ होता है जो हाउसवाइफ होता है, उनको पैसा मतलब वो काम नहीं करती है, उसको कोई सैलरी नहीं मिलता है, तो उनको हस्बैंड के पास जाके कुछ खरीदने के लिए हस्बैंड को माँगना पड़ता है। तब जाके हस्बैंड का कब इच्छा हो देने का, वो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, उसके ऊपर झगड़ा करना और छोटा-बड़ा बात करना। अगर कोई बहुत सारा वाइफ ऐसा होता है कि उसको खाना पकाना ठीक से नहीं आता है, तो इसमें जाके वो जो इन-लॉज़ होता है वो अपने मतलब वो वाइफ के मम्मी-पापा को लेके बात करती है, बहुत सारा गाली-गलौज करते हैं और बहुत सारे लोग होता है कि उसके शरीर के कलर वो कैसे ब्राइट है या डार्क है या छोटा है या थोड़ा लंबा है या मोटा है, ये सब देख के उसको इंसल्ट किया जाता है कि तुम तो मोटा हो, तुमको सब कुछ नहीं अच्छा लगेगा, ये ड्रेस तुम्हें नहीं मैच कर रहा है, तुम छोड़ दो इसको, क्या पहने हो? ऐसे करके बहुत बार हम लोग को इंसल्ट होना पड़ता है ना, तो ये सब भी हम लोग का मेंटल टॉर्चर है। मतलब टॉर्चर हर टाइम फिजिकल होता है ऐसा नहीं है, मेंटल भी होता है। तुम बहुत खाती हो, तुम थोड़ा कम खाओ, मतलब बहुत ये करके बहुत टाइप्स का टॉर्चर होता है। अगर बहुत सारा ऐसा भी होता है कि शादी के पहले बोला जाता है कि ठीक है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, चलो तुम शादी कर लो, उसके बाद भी तुम पढ़ाई करोगे, कोई बात नहीं। लेकिन शादी होने का बाद वो पढ़ाई बंद कर देता है। अभी अभी तो पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है, छोड़ दो घर में बहुत काम है, ये देखो, फिर भी बच्चा का प्लान करना है, ये सब करके उसका पढ़ाई बंद हो जाता है। तो ये सब भी एक तरह का टॉर्चर ही है। ये घुमा-फिरा के उसको एक टॉर्चर मतलब ये सब डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। तो जब ये इस तरह का कोई कंप्लेन अगर हम लोग के पास आता है, तो हम लोग उनको डोमेस्टिक वायलेंस के मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर हम लोग केस फाइल करने के लिए बोलते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हम लोग केस फाइल करते हैं और जो जिसका जो मतलब ये हुआ जो काम जिसके साथ जो किया गया है, उसके ऊपर कंपेंसेशन के लिए हम लोग प्रेयर करते हैं कोर्ट में। तो उसके आफ्टर हियरिंग जज को जैसा अच्छा लगा वो ऐसे ऑर्डर करते हैं कि ठीक है, ये सच में हुआ है तो इसको ऐसे करके कंपेंसेशन मिलना चाहिए। तो ऐसा ही ऐसे करके होता है। जी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना वक्त निकाला, इतना क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई ऐसा होता है, और ऐसा आप लॉयर के मदद से आप उस प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। द लॉयर्स आर विद यू, दैट्स रियली नाइस। अगर हमारे बहनें या भाई लोग आपसे संपर्क करना चाहेंगे, आपसे कांटेक्ट रखना चाहेंगे, उनके कोई केसेस होंगे, तो आपसे कैसे जुड़े रहे, आपके साथ कैसे कनेक्ट होना है? मतलब जो लोग कॉल करेंगे और मतलब जो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, वो लोग अगर इंडिया में होगा मतलब आप कहाँ से वो लोग कनेक्ट करेगा? इंडिया से और आउट ऑफ इंडिया से? दोनों भी, इधर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, अगर ऐसा है तो। तो आप मेरा नंबर उनसे शेयर कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ईमेल आईडी भी शेयर कर दीजिएगा। अगर वो लोग मुझे मेल करेगा और व्हाट्सएप करेगा तो हम उनके साथ बात कर लेंगे, जो प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है।
जी, 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 टाइम निकल के हम लोग फिक्स कर देंगे कौन-सा टाइम में बात करना है। जी, जी. Ji, ma'am. My dear friends, if you'd like to get connected with our special celebrity and guest who is a lawyer and working hard for bringing justice in the society for one and all, irrespective of any gender, age, she is fighting for the cause of humanity, for people across the world. You can, if any Indian is across the world, you're facing any kind of trouble and you really require any kind of help or any advice, you're free to connect with her. She will share her number and email ID, which we'll be sharing in the description box. And don't hesitate to seek help no matter which country you are, which state you are. Reach out to the right kind of people. And she is one of them who is out there to save the dignity of people around, the Indian society. Now, when I hear people like this sharing these stories, hair-raising stories, how their personal experiences, the difficult nightmares that they have faced to save somebody else, they become unsung heroes. They become people who we love and respect. Dear ma'am, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को भी मिला. मैं बस यही कहना चाहूंगी कि भाई आपका ख्याल भी रखिए. आप इतने सारे इंसिडेंट्स शेयर करें तो वो भी उसके बारे में सोचते कि थोड़ा सा डर लगता है हम सभी को. तो आपके जैसे, आप जैसे लोग रहना है इस दुनिया में बहुत बहुत सारे साल अभी, समाज में आप रहकर सभी के लिए काम करना है और एक रोल मॉडल आप हैं. Take care of yourself, of your safety too. Stay safe थैंक यू, and stay connected. थैंक यू। Thank you, dear. I would like to even thank Aprajita ma'am from Brave Souls for sharing the details and connect of our special celebrity and guest. Thank you, Aprajita ma'am. And thanks to you too, dear. Thank you very much. Namaste. My dear friends, thank you, dear. My dear friends, with this, we'll come to an end to the International Fab Talks. If you like what we are doing, connecting with the right kind of people, the unsung heroes who are working for the society, working for truth, justice, and honesty, no matter which gender you are, age, etc., reach out for help, legal help. If you really feel a legal intervention is required, you could really connect with lawyers, you could connect with people of right kind of people. Save yourself. And of course, if you like the International Fab Talks, comment, like, and share. And don't forget to subscribe to the International Fab Talk channel. Stay safe.